الرحیم ناظرین، میں ہوں آپ کا میزبان ولید یاسین اور نئے ولاگ کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ اس وقت میں موجود ہوں پوسٹ گریجویٹ کالج باغ، وائس کالج باغ میں، اور یہاں پہ ہم آپ کو دکھائیں گے کہ کیا کیا چیزیں بہتر ہیں اور کس طریقے سے ہمارے ساتھ یہاں کے ایک پروفیسر صاحب بھی موجود ہیں اور بڑے ہمارے بڑوں کے بھی استاد ہیں اور ہمارے بھی استاد ہیں۔ آج ہم آپ کو تمام چیزیں جو اس کی پازیٹیو چیزیں وہ بھی دکھائیں گے، اور جو یہاں پہ صفائی ستھرائی کا نظام ہے، جو دیگر چیزیں وہ بھی دکھائیں گے۔ سیم صاحب بھی میرے ساتھ ہے۔ کامران سیم صاحب، آپ کی بھی یادیں ہوں گی، لیکن میں نے بھی یہاں پہ 1-2 پیپر دیے ہیں۔ میں 9th-10th میں آ کے اس کالج میں، تو یہاں پہ پڑھا تو نہیں ہوں میں۔ تو کیا کیسی یادیں وہ بستا رہی اس زلزلے سے پہلے؟ آپ ذکر کر رہے تھے کہ ہم یہاں پڑھتے ہوتے تھے، تو اب اور اس میں کتنا انتظار ڈفرینس تو کافی ہو گیا ہوگا۔ بہت شکریہ جی ولید بھائی۔ بات یہ ہے کہ میں نے یہاں پہ 2 سال پڑھا ہے جو ریگولر نا بی اے میں۔ اچھا، تو اس کے بعد چونکہ ہم اسٹوڈنٹ پالیٹکس کرتے تھے تو آنا جانا ہمارا لگا رہا مختلف ایکٹیویٹیز کے حوالے سے، پھر اسپورٹس کے حوالے سے اور دیگر بھی۔ تو زلزلے سے پہلے کی بلڈنگ اور زلزلے سے پہلے کے ماحول میں اور بعد میں زمین آسمان کا فرق اچھا ہے یا مطلب کیا؟ یعنی پازیٹیو چینج ہے، ہم اس کو یہ نہیں کہہ سکتے۔ ایک اسٹوڈنٹ پالیٹکس تھوڑی سی کمزور ہوئی ہے بے شک، لیکن باقی اچھا چینج ہے، یعنی ایجوکیشن کی طرف بچے زیادہ راغب ہوئے ہیں، وہ اچھا ہے۔ تسکین صاحب بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں، اور یہ کچھ بایو کے حوالے سے کچھ چیزیں ہمیں جو ہے تو دکھانے جا رہے ہیں، اور جو ایک بڑی خوبصورت قسم کی ایک ان کا ایک گارڈن ہے وہ بھی دکھائیں گے۔ اچھا جی، ابھی ہم کدھر جا رہے ہیں سر، یہ بتائیے گا؟ یہ بوائز کالج کا بوٹینیکل گارڈن بنا رہے ہیں جی جی، یہ ابھی پہلے مرحلے میں ہے، ٹھیک ہے اور اس میں ابھی ہم نے صرف اس کا سینٹر کلیئر کیا ہے۔ ٹھیک ہے، یہ سائڈ پہ بھی جو آپ کو دکھا رہا تھا، یہ بایو فینسنگ جو کنسیپٹ ہے وہ کر رہے ہیں کہ ہم بایولوجیکلی فینس بناتے ہیں، اور یہ ہم نے ساری بنائی ہوئی ہے بیل کے ساتھ۔ اچھا اور یہ جو بیل لگائی ہوئی ہے ہم نے، یہ مکیونا پلانٹ کی ہے۔ اچھا، اور مکیونا پلانٹ جو ہے یہ پھلی دار پودا ہے، 2 بینیفٹس آپ کو دیتا ہے۔ ایک تو فرٹیلیٹی انکریز کر رہا ہے، اور دوسرا یہ ایفروڈائزک ہے۔ اچھا اور انشاءاللہ اس کو آگے یوٹیلائز کریں گے، دیکھیں گے۔ آپ کی رائٹ سائڈ پہ یہ ابھی سینٹر ہم بنا رہے ہیں اس کا، اچھا، اور اس میں آپ کو میں آپ کو ساتھ دکھا بھی دیتا ہوں کیونکہ یہ دور سے دیکھنے سے پتہ نہیں چلتا۔ اس میں 3-4 قسم کے پودے ہیں۔ یہ ہمارے پاس روز میری ہے اور لیونڈر ہے۔ یہ بیسیکلی جو ہے یہ پرفیوم پلانٹس ہیں، اچھا، لیکن یہ آپ کے موڈ پہ جو ہے وہ بڑے افیکٹ کرتے ہیں، اور اگر آپ اسٹریس کی کنڈیشن میں تو اگر اس کے باغ میں بیٹھیں گے تو آپ تھوڑا سا اچھا فیل کریں تو گے۔ یہ فیوچر میں کوئی اس کی صفائی جو ستھرائی؟ آپ کے پاس یہ سامنے پلانٹ ہے، یہ اسٹیویا پلانٹ ہے، اس کو شوگر پلانٹ بھی کہتے ہیں، اچھا، اور اس کا اندازہ آپ کو تب ہوگا جب آپ اس کو خود کھا کے دیکھیں گے۔ یہ کھانے والی چیز ہے؟ کھائیں اور نہیں مانگنا یہ بالکل۔ اور اس کا ٹیسٹ اس طرح سے ہے کہ آپ کوئی ٹافی میں آپ کو اگر بتا دوں، بڑا میٹھا ٹیسٹ، ہاں سے زیادہ ہوتا ہے۔ ٹافی سے بھی زیادہ ہے، اور یہ بہت ہی ٹیسٹی اور بڑا شوگر جیسا میٹھا اور میٹھا۔ یہ جو اور اس کی اگر آپ چائے استعمال کریں گے تو آپ کے شوگر لیول کو یہ بلڈ کے اندر انکریز نہیں کرے۔ یہ چائے میں بھی استعمال ہوتا ہے؟ جی جی، اس کی چائے کی اور یہ شوگر پیشنٹ کے لیے سویٹ استعمال کیا شوگر پیشنٹ کے لیے آپ بتا رہے تھے؟ ایڈوائز کیا جاتا ہے یہ شوگر پیشنٹس کے لیے اچھا، کہ وہ اگر سویٹنر کے طور پہ اس کو استعمال کریں۔ یہ ساتھ ہی جو پودا آپ کو نظر آ رہے ہیں یہ روز میری ہے، یہ جس کی نیڈل لائک لیف ہے وہ، یہ وہ سامنے، ٹھیک ہے۔ وہ آگے جو سلور کلر میں نظر آ رہا ہے جی جی، لیونڈر ہے، بہت مہنگا پودا ہے۔ اس کو پاکستان کے اندر ٹرائی بھی کیا گیا ہے، تو یہ 3 ایریاز کے اندر ابھی کامیاب چل رہا ہے۔ مانسیرا کے اندر کامیاب چل رہا ہے، اور باغ میں اللہ کے فضل سے کامیاب چل رہا ہے، اور ساتھ عباس پور میں کامیاب۔ اچھا، یہ جو میٹھا جو آپ نے ایک پتا کھایا، اس کا کیا نام تھا؟ ہمارا انوائرمنٹ شوگر پلانٹ، شوگر پلانٹ ویسے کہتے ہیں۔ شوگر پلانٹ کیسا ٹیسٹ ہے؟ اسٹیویا نام۔ کیسا ٹیسٹ ہے کامران؟ بالکل آپ نے بیان کر دیا، واقعی بڑا سویٹ ہے، اور یہ جو بات انہوں نے بتائی کہ شوگر پیشنٹس کے لیے کہ وہ اس کو سویٹنر کے طور پہ یوز کر سکتے ہیں، ظاہر ہے تھوڑا سا اس کو وہ کیا جاتا ہوگا۔ آپ کیا چیز دکھا رہے ہیں؟ یہ لیمن بام ہے، اچھا، اس کے پتے کو ملیں سونگیں پھر۔ پتے آپ نے سر کم لائے ہیں یار مجھے یہ پودے جو ہے نا اتنے پیارے ہیں، اچھا جس طرح ماں کو بچے پیارے سر، ایک اور اگر آپ پتا دے دیں تو پھر ہم بھی سنگیں تو پھر اس میں سے یہ اس کو سن لو یار۔ آپ ایسے ہی ہاتھ سے ہمارے نہیں روزمری کی بالکل جی، اس کا لیمن کی طرح کا جو اسمیل ہے۔ یہ بام بنتی ہے اس کی، اچھا اچھا، پرفیوم میں بھی استعمال ہوتا ہے۔ یہ سونگ کے دیکھیں، وہ پودا یہ ہے جی۔ لانی صاحب یہ موڈ خراب یہ سر، یہ اس کا لیمن گراس جیسا کیا اس کا اس کا وہ کچھ ہے، وہ اسمیل ہے اس کی کیا؟ اس سے وہی چیز ہے سر؟ ہاں، اچھا، اس کو مل کے سنیں۔ یہ اگر آپ کہیں اسٹریس میں ہے نا، اس کے پتے آپ کے ہاتھ میں ان کو مل کے آپ سنتے رہیں، اسٹریس کم کرتا رہتا ہے۔ صحیح، اور یہ آپ فیل کریں گے تھوڑی دیر کے بعد، آپ باڈی کے اندر فیل کریں گے۔ اچھا، میں لیمن گراس کے پتوں کے پاس وہ درخت پودا ہے اس کے پاس کھڑا ہوں۔ دوسری چیز جو آپ پودینہ استعمال کرتے ہیں، یہ ہمارے پاس پودینہ ہے، یہ گلین سب کھا کے دیکھیں، جی بالکل، اس کی کھا بڑی کے دیکھیں۔
बहुत तेज। ये सारी चीजें खाने वाली हैं सर, तो इसकी हिफाजत कैसे करते हैं आप? आगे जी बड़ा सारी फेंसिंग की हुई है ठीक है। बाहर से। बहुत हमारे सारे पास ये- चूंकि मोरिंगा के प्लांट थे, हम्म। वो कुछ जाए हुए हैं। ये ये फिर- एरिया भी हमने वेजिटेबल्स के लिए क्लियर किया है। ऐसे नीचे होती है। हाँ सर। ये और बाकी इसका टेस्ट बड़ा ही जबरदस्त किस्म। हमारी पहाड़ी ज़बान में कहते चन्ना है हमें इसे। ये फायदा हुआ कि आपकी बहुत सारी चीजें हमें आज देखने को मिला खड़े होके ये बंदे को नहीं बता सकते यार कि हमें क्या लगा है। वो खड़ा बाल किधर है जी? ऐसा ही। सर जरूरी है कि इसके लिए थोड़ी सफाई सुथराई भी हो, ये नेक्स्ट टाइम ये चीजें। ये चाइनीज अमरूद है। अच्छा। ये यहाँ introduce हुआ है यहाँ पे। बाकी जैतून है यहाँ पे। अच्छा सर, ये थोड़ा सफाई सुथराई के हवाले से इसका ये जो नेक्स्ट टाइम अगर कोई विजिट करे तो इसके हवाले से ये चीज देखें। अगर यहाँ पे जो आपके आप गार्डनर। देखें जी कि मेरे पास सिर्फ एक माली है अच्छा जिसकी मदद से मैं ये सारा काम कर रहा हूँ और इसको क्लियर कर रहा हूँ। ये 5वीं दफा इसकी ग्रास कटिंग की है हमने। अच्छा यहाँ पे चूंकि पार्थिनियम, ये आपकी बैक पे जो मौजूद है, ये पार्थिनियम का प्लांट है और ये ऊपर जो नजर आ रहा है आपको, ये कैनाबिस है। ये दोनों खुद रोए हैं और ये बहुत ज्यादा होते हैं और इनको निकालना और खत्म करना बड़ा मुश्किल होता है। एक माली की मदद से ये काम। दूसरा ये है कि हमारे पास बजट एलोकेशन गार्डन के लिए कोई नहीं होती है। ये जितने प्लांट्स हमने लाए हैं, ये तकरीबन हम 22,000 रुपए के पौधे लाए और ये हमने पर्सनल कंट्रीब्यूशन की बुनियाद पे लाए हैं। इस गार्डन के अंदर कॉलेज की कोई इन्वेस्टमेंट नहीं है। उन लोगों के पास इस तरह का है ही कोई नहीं। उनके पास गिलान साहब क्या कहना चाहेंगे, रिव्यूज क्या देना चाहेंगे इस गार्डन के हवाले से? ये जो पोस्ट ग्रेजुएट कॉलेज बाग का जो एक आपने देखा। देखिए, ये जो तस्कीन साहब ने हमें विजिट करवाया, तो ये पहली बार बहुत सारी चीजें हम देख रहे हैं। अच्छा, टेस्ट के बारे में मुनफरद अंदाज में आप ये देखें कि यहाँ का हमारा जो लोकल यहाँ का जो है, क्या कहते हैं उसको, जिसे चटनी बनाई जाती है पुदीना पुदीना, उसमें और इसमें बड़ा फर्क है। शुगर प्लांट। हाँ, शुगर प्लांट आप देख लें, उसका टेस्ट देखें। फिर ये बहुत सारी चीजें वो हैं जो इससे पहले हमने नहीं देखी, बिल्कुल। तो उसका टेस्ट भी हमने लिया। तो आपको विजिट इसलिए नहीं करवाई कि कमरान साहब थोड़ी जल्दी में थे, इन्होंने भागना भी है। मैं इनको हल्दी दिखा के ले चलता। बहुत अच्छी क्राउड है हमारे पास हल्दी की, फिर आएंगे। तो इंशाल्लाह आपको फिर विजिट करवाएंगे। सदर साहब क्या कहना चाहेंगे मुख्तसर? हमने जस्ट जो है वो इसकी लें। समझता हूँ कि बहुत अच्छी काविश है तस्कीन साहब की, और इसी तरह की यही जो प्रोफेसर हैं कॉलेज या यूनिवर्सिटी, उनका काम यही होता है। लेकिन हमारे यहाँ लोग ये समझते हैं कि सिर्फ किताब पढ़ना ही, बिल्कुल प्रैक्टिकल भी होती है चीज। ये जो प्रैक्टिकल हमने देखा है तहसीन साहब का, ये बहुत काबिल तारीफ है। और इस तरह के इकदाम से मैं समझता हूँ कि यहाँ डेवलपमेंट ही हो सकती है और लोगों को जो है खुद रोजगार की तरफ भी बढ़ाया जा सकता है। यहाँ पे जो पौधे हमने लगाए, वो जो आपने देखे, वो अगर 2 पौधे उग गए या 3 उग गए तो इसका मतलब ये है कि हम सैकड़ों के साथ, हजारों के साथ से ये कर सकते हैं। ये बेसिकली हमारा एक एक्सपेरिमेंट है। तो नेक्स्ट टीम में से हम सेलेक्ट करके जो ज्यादा लोग दे रहे हैं वो हम आगे देते हैं, जो बड़ा इसमें प्रॉफिट है। आप देख लेंगे परफ्यूम खास करके ना, पूरे पाकिस्तान में परफ्यूम सारा इंपोर्ट हो रहा है, इटली से, फ्रांस से, जर्मनी से। तो उनमें एक लेवेंडर बिल्कुल नया एक परफ्यूम है कि जो आपको न सिर्फ अच्छी स्मेल देता है बल्कि उसकी वजह से लोगों को नींद भी आती है। तो रात को आपके सराहने में अगर उसको स्प्रे कर लिया जाए तो बड़ा कंफर्टेबल फील होता है। तो अच्छा, इसकी एक्सट्रैक्शन जो है ऑलरेडी सक्सेसफुली कर चुके हैं। इनके दोस्त हैं अब्बासपुर कॉलेज में, हम यहाँ से बेसिकली वहीं से हमने ये आइडिया हमने लिया, फिर हमने उनके पास जगह थोड़ी सी हमारे पास होता है, तो ये इसकी एक्सट्रैक्शन करना भी इतना मुश्किल नहीं है। अब लकीली मेरा और इनका वो हो गया कि ये बॉटनीज है, पौधों के तल का ये, और केमिस्ट्री मेरी है, एक्सट्रैक्शन करना आगे, यानी रॉ मटेरियल मेरे पास आ जाए तो आगे उसको वैल्यू एडिशन करनी, उसमें मेरी एक्सपर्टीज है। तो फिर ये कॉलेज आइडियल जो हमारी सोच है वो ये है कि हम इस इदारे को एक मिनी इंडस्ट्री वो वैल्यू एडिशन करके हम प्रोडक्ट की शेप में भी जाए। फिर इस प्रोडक्ट को आगे हमारे पास पूरा कॉमर्स डिपार्टमेंट है कि जिधर सारी उनको मार्केटिंग मैनेजमेंट वो सारी पाई जाती है। बच्चों के पास बजाय इसकी किताबें हों, उनके हाथ में प्रोडक्ट हो। जैसे परफ्यूम का एक उनके पास एक बॉटल है, वो जो है मार्केट में जाके बताएं कि ये देखें, स्प्रे करके बताएं, कि स्मेल करके बताएं, और फिर वो आगे मार्केटिंग करें और उससे बच्चों को भी फायदा होगा। और एट दिस मोरिंगा का पौधा गया यहाँ से, एवोकेडो के पौधे गए यहाँ से। अच्छा, दालचीनी का बहुत अच्छा पौधा था मेरा, इतना बड़ा हुआ था, और उसको अगर आप टेस्ट करते ना आपको बड़ा सुरूर आता मसाले वाला, और वो स्वीटिंग टेस्ट है वो भी। वो पौधा जड़ से उखाड़ के कोई लेके चले गया। तो यहाँ पे एक ये भी इशू है कि आप लोगों को समझा नहीं पा रहे हैं। तो आहिस्ता आहिस्ता चीज़ें, जब अभी डॉक्टर साहब ने मुझे कहा जी कि आप इसका गेट लगवाएं पहले,
तो अगर कहीं से नहीं होता मैं जेब से दूंगा। तो मुझे ये भी बड़ा प्लस पॉइंट है कि मैं पौधों के लिए आया, मैंने कहा सर हमने कॉलेज फंड से नहीं लेना, तो हमने पर्सनल कंट्रीब्यूशन करना है। कहते हैं कितने दूं मैंने कहा सर आप थोड़े बड़े हैं हमसे, तो आप 5,000 रुपये दे दें। कहते हैं यार मैंने 10,000 रुपये ला करके रखे हुए थे, आपने डिमांड ही 5 की है, ये 5 तो ले लें, आपके ये 5 मेरे पास अमानत हैं, तो आप जब कहेंगे मैं आपको दे दूंगा। तो सारे प्रोफेसर ने कंट्रीब्यूट किया। ये जो हमारे फ्रेंड प्रोजेक्ट है ना, बेसिकली हमें PhD अलाउंस मिलता है। जो बंदा भी गवर्नमेंट जॉब में है और उसको PhD की हुई है, उसकी तनख्वाह में 10,000 आता है, तो उसका नाम लिखा हुआ है। पहले था रिसर्च अलाउंस, अब है क्वालिफिकेशन अलाउंस, नाम बदल सकते हैं। और बेसिकली ये रिसर्च अलाउंस है कि ये गवर्नमेंट ने ये सपोज किया और ये बिल्कुल चॉइस किया कि जब हमें PhD करता है तो उसका दिमाग हमेशा चलता रहता है। मेरी PhD आर्डो के है मेटल एक्सट्रैक्शन, तो मादनियात हैं जिन पर जमीन में सोना है, चांदी है, यूरेनियम है, दीगर मेटल्स है, उस मट्टी से कैसे जो है वो आपको जो प्रीशियस मेटल है उसको एक्सट्रैक्ट किया। अब मेरी प्लेसमेंट यहाँ पे है, ऐसी जगह पे है कि जहाँ पर ये चीजें तो नहीं है, लेकिन फिर मेरा दिमाग चला और रिपोर्ट था कि अगर ये नहीं है तो मैं किसी दूसरी चीज से भी कोई कीमती चीज निकाली जा सकती है। एक्सट्रैक्शन का मेथड ऑलमोस्ट सेम। फिर मैंने सोचा कि क्यों नहीं पौधों से जो कीमती चीजें हैं उनको सेटअप किया जाए। फिर उस पर हम रिसर्च, आपको पता है कि ये बड़ा एक टाइम टेकिंग है। आपने हमें आज जिस जगह का विजिट करवाया इसके बारे में कुछ कहना चाह रहे थे आप? एक्चुअली ये है जी कि यहाँ पे जो बेसिक हमारा मकसद है वो ये है, ये ट्रायल सेंटर समझ लें कि हम सीड्स को यहाँ पे ट्रायल करते हैं कि कौन सा प्लांट हमें दे रहा है, रॉ मटेरियल हमने प्रिपेयर करना है। आगे हम जाना चाह रहे हैं परफ्यूमरी की तरफ, ठीक है। और साथ साथ हमारी ख्वाहिश ये है कि हम जो कुकिंग ऑयल्स हैं उस साइड पे जाएं। हमारे पास 3-4 पॉसिबल है इस तरह का कश्मीर में? है जी। ये अभी जो अंदर में आपको दिखा था कॉर्न, हमने जो ऑयल बनाने वाली कॉर्न है, मकई की किस्म जिससे तेल तैयार होता है, ठीक है, उसका सीड भी हमने ट्राई किया, अच्छे रिजल्ट हैं उसके। तो हमारी जमीनें कैसी है सर? मोस्टली ये कहा जाता है कि हमारी जो जमीनें हैं बिलखुसूस बाग की, तो ये कहते हैं कि कोई इतनी जरखेज नहीं है, तो आप क्या समझते हैं? अच्छा, जमीन की जरखेजी देखने के लिए उसके ऊपर वेजिटेशन देखना होती है। मेरे पास यहाँ पे घुटनों तक जो है वो ग्रास जमी हुई थी, और मेरे बहुत सारे दोस्त अहबाब यहाँ पे आके कहते थे कि नहीं जी आप इसमें गोबर डालें जी, खाद डालें जी, केमिकल डालें। मैंने कहा यार फर्टिलिटी लेवल जो है हमारी साइल का नेचुरली बहुत अच्छा है। अच्छा, इसमें अगर आप काश्त करेंगे तो उसके बाद माइनर आपको इसमें नेचुरल फर्टिलाइजर यूज करना होती हैं। दूसरा असल कंसेप्ट ये है कि हमारी मार्केट में इस वक्त जो है वो इनऑर्गेनिक फूड्स जो है वो ज्यादा इस्तेमाल हो रही हैं। अच्छा, और वो इनऑर्गेनिक फूड्स जो हैं वो आपकी बॉडी के लिए नुकसानदेह हैं, कैंसर काजिंग है, डिजीज काजिंग है। हम ये कहते हैं कि आप ऑर्गेनिक्स की तरफ आएँ, बजाय इसके कि आप खाद से टमाटर पाल के खाएं। आप गोबर की खाद इस्तेमाल करें और उससे टमाटर पाल के खाएं, वो आपके लिए बेनिफिशियल है, मेडिसिनल है वो। तो ये ऑर्गेनिक का कंसेप्ट भी देना चाह रहे हैं हम। और दूसरा जो प्रोडक्टिव प्लांट्स हैं उनको हम स्प्रेड करना चाह रहे हैं बाग के अंदर। और अल्लाह के फजलो करम से बाग वो खुश नसीब धरती है कि जिसके पास चारों जोन्स मौजूद हैं और हर तरह के पौधे आप यहाँ पे काश्त कर सकते हैं। बिल्कुल कोई इशू नहीं है हमें, यानी सब ट्रॉपिकल जोन से लेके हम अल्पाइन तक जो है वो सारे कर। सर स्टूडेंट्स के अंदर कैसा रुझान देखने को आया? आप जब से ये आपने ये एक जो प्रोजेक्ट शुरू किया हुआ, आपने खुद ही कह रहे हैं कि मैंने खुद अपनी मदद आपके तहत किया, तो स्टूडेंट्स, मजे की बात बताऊं कि इस जमीन से खाली जो पत्थर मैंने निकाला है वो 130 ट्राली के लगभग पत्थर निकाला है, और उसमें कोई मजदूर इस्तेमाल नहीं हुआ है। हमारे पास अपना बॉटनी का डिपार्टमेंट है, हमारे स्टूडेंट्स शौक के साथ काम करते हैं जाके, और टीचर्स ने काम किया, प्रिंसिपल साहब ने इवन जो है वो वहाँ पे जाके काम किया है। और हमारे पास क्योंकि BS बॉटनी चल रहा है तो हमारी अपनी नीड भी है, ये फील्ड हमें चाहिए होता है, ग्राउंड हमें चाहिए होता है जिस पर हम काम करें। तो बाकी कॉलेजेस में सर ये चीज हमें देखने को नहीं, तो उसके चूंकि सिलेबस का हिस्सा है उसको करना पड़ता है, मजबूरी होती है। बाकी कॉलेजेस में तो हमें ये देखने को नहीं मिलता, तो ये आपके कॉलेज में, बाग में और भी बहुत सारे कॉलेजेस। बेसिकली ये नीड होती है यूनिवर्सिटीज की, जहाँ पे बॉटनी के, एग्रीकल्चर के सब्जेक्ट्स चल रहे होते हैं, लेकिन हमारी यूनिवर्सिटीज के पास लैंड्स इतनी ज़्यादा नहीं होती हैं, लैंड्स होती हैं तो फंड्स नहीं होते। तो ये ज़ाती शौक भी होता है, अपना जोश जज्बा भी होता है, फिर साथ दोस्तों को मिलाना होता है। शुरू में आपको बड़ी तनकीद सुनना पड़ती है। तो एक ज़माने में हम हमारे बाग को भंग का बाग कहते थे, तो अब वो कम से कम भंग के बाग से कम से कम बाग वाली तरफ आना शुरू हो गया। सर फ्यूचर क्या प्लान्स हैं आपके इस बॉटनी के हवाले से? ये जो आपने प्रोजेक्ट किया इससे मजीद क्या बेहतरी लाएंगे? अच्छा, हमारे जो एजुकेशन सिस्टम है उसमें थ्योरेटिकल वर्किंग बहुत ज़्यादा है।
प्रोडक्शन कोई नहीं होती है। हमारा बच्चा जो है वो मास्टर डिग्री लेके जाता है, वो बॉटनी में लेके जाएगा, लेकिन उसको काम करने का सलीका नहीं आता होगा। तो हम चाहते हैं कि हम बच्चे को ये बताएं कि हम एक प्रोडक्टिव फील्ड के अंदर मौजूद हैं और हम इंशाल्लाह प्रोडक्शन की तरफ से आएंगे। बहुत जल्द आपको इंशाल्लाह विजिट करवाएंगे और हम प्रोडक्शन जो प्लांट्स हैं इंशाल्लाह बुला लेंगे। इंशाल्लाह जी, हम एनी टाइम आपके इस तरह के कामों के लिए हम अवेलेबल हैं और आप जब भी चाहेंगे हम आएंगे इंशाल्लाह। थैंक यू वेरी मच, बहुत शुक्रिया।